In this class, we are going to discuss about context-free grammar. In previous class, we studied about Chomsky hierarchy, or which we know as types of grammar. So, in types of grammar, in type 2 grammar, we studied about context-free grammar, which is the mostly used grammar in while we are using the syntax of programming language. So, this grammar is mostly used grammar in the field of automata theory. So context-free grammar actually can be defined by the help of 4 tuples, and those tuples are V, T, P, S. As I told you earlier, that V means set of variables, or in some textbook it is also known as non-terminals, right? We will be referring it as variables only because it will not lead us to confusion. So V stands for set of variables, and how we are going to symbolize those variables by use of all capital letters or uppercase letters. We are going to symbolize those variables. So wherever you see the capital letters or uppercase letters in the grammar, you can say that it is a variable. Okay. Now, second thing is terminal. T. T stands for set of terminals. Now, terminal can be symbolized by anything, everything other than uppercase letter, as it is written out here. That terminals are everything other than uppercase letter. So, if you see comma, if you see at the rate, if you see any special symbol, hash, or small letters, all those things will be considered as terminals, right? Then, and these terminals are actually contributes in strings of our language, whatever language that we are referring. Then third one is P, that is production, set of productions. Set of production can be written in the form of alpha produces beta. And as I have discussed with you, that alpha and beta are described in different ways in different languages. Here in different grammars. Here in context-free grammar, alpha is actually V, that means variable. So on left hand side of this production, there will be a single variable. On right hand side of the variable, there will be any possible combination of variable and terminal, including epsilon. So on right hand side, it could be any possible combination of variable or variable terminal both, or epsilon also can exist on right hand side. Last tuple is start symbol, and this start symbol actually is a part of this variable set. From this variable set, this start symbol has been picked up. A special symbol from where the grammar is being started is called as start symbol. ठीक है? So ये 4 टपल हैं जिनसे हम define करते हैं अपनी context free grammar. Now we'll move forward to see, just a second. So we'll move on with some examples so that we are able to understand this context free grammar in a more clear way. So यहाँ पर मैंने एक language set लिया है L1, which is 0 to the power n, 1 to the power n, such that n is greater than or equals to 1. यही एक last language था जो हमने पिछले unit में पढ़ा था, which was not regular, and by use of pumping lemma we proved that this language was not a regular language. ठीक है? So अब यहाँ पर अगर regular language नहीं है तो इसके लिए context free grammar बनाना पड़ेगा. आपने देखा था वहां पर जब चॉम्स्की हायरार्की जब हम पढ़ रहे थे, एट when in Chomsky hierarchy there was some languages जो कहलाती थी रेगुलर लैंग्वेजेस. ठीक है? ये क्या कहलाती थी? ये थी रेगुलर लैंग्वेजेस. जस्ट अ सेकेंड. रेगुलर लैंग्वेजेस या जिनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. But this L produces 0 to the power n, 1 to the power n was not existing. So what, if we can say whatever language
comes under this domain, इसके अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस आएंगी उसको हम बोलेंगे कि यस इसके लिए ये रेगुलर है, इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं और इसके लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन भी बना सकते हैं। बट अगर कोई लैंग्वेज इस डोमेन के बाहर एग्जिस्ट करती है, लेट अस सपोज ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इस डोमेन के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए हम ना फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या करें? इन दैट कंडीशन वी विल make its we will use another set acceptor which will be called as context free grammar. context free grammar जो है उस ऐसी लैंग्वेजेस के लिए हम context free grammar बनाएंगे। तो यहां पर अब हम context free grammar बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस लैंग्वेज सेट के लिए। सो क्या होगा इसका? तो इससे पहले कि हम इसका एक ग्रामर बनाए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस लैंग्वेज से बनने वाली स्ट्रिंग्स कैसी हैं। तो अगर आप देखें तो इस लैंग्वेज से बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने ही नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं उसके बाद। ठीक है, कभी भी वन के बाद जीरो नहीं आ रहा, ऑलवेज जीरो इज फॉलोड बाय वन। तो यहाँ पर अगर हम जीरोस के लिए एक अलग काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जीरो के लिए, नहीं इसको एक काम करेंगे, हमको यहाँ पर हमने इसकी ग्रामर अगर बनानी है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब ये एक लाइन में मैंने इसकी ग्रामर लिख दी, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैंने एक लाइन में इसकी ग्रामर लिख दी। कैसे ये ग्रामर इसके लिए काम करेगी, कैसे ये ग्रामर इन सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगी, वो हम देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर S प्रोड्यूसेस 0 S1 लिखने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है S प्रोड्यूसेस 0 S1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अगर ये बीच में जो S लिखा हुआ है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये जस्ट अ सेकंड, मैं इस S की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको बोलूं कि इसकी जगह मैं S की वैल्यू फिर से पुट करूं, मतलब S प्रोड्यूसेस 0 S1 फिर से लिखूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखें 0 0 S1 1। अब आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये जो S है इसकी वैल्यू मैंने लिखी 0 S1। यही चीज तो यहाँ पर S की वैल्यू देखिए क्या है, 0 S1 ही तो है, तो मैंने इस S की जगह 0 S1 रखा। अब मैं अगर फिर से इस S की जगह 0 S1 रखूं तो क्या होगा? देखिए 0 0 0 S1 1 1। तो अब आप देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने जीरो बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड में उतने ही वन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब कभी ना कभी इस S को तो हमें खत्म करना ही होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बन रही है हमारे पास। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो बन रही है हमारे लैंग्वेज सेट में वो है 0 1, राइट? दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऑफ आवर लैंग्वेज सेट। तो यहां पर हमने देखिए S प्रोड्यूसेस 0 1 रख दिया, जिससे जब भी हमें S को खत्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0 1 रखकर अपनी स्ट्रिंग पालेंगे। तो अब चाहे 2 बार 0 2 बार 1 हो, 4 बार 0 4 बार 1 हो, या 1000 बार 0 और 1000 बार 1 हो, आप सिर्फ इस एक लाइन की ग्रामर से अपनी पूरी लैंग्वेज सेट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, another example, if I say that if I want to write a grammar for 0 to the power n 1 to the power m, तो तब मैं क्या करूंगा? तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लिबर्टी मिल गई। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ वंस। जितनी बार जीरोस आएगा उतनी बार वन आए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खाली बाउंडेशन ये है कि जीरोस के बाद ही वंस आएंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ क्या किया सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि इसमें स्ट्रिंग कैसी बन रही है, वो मैंने आपको समझा दिया। देन मैं क्या करूंगा, जीरोस को जनरेट करने के लिए एक मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा, ए प्रोड्यूसेस 0 A ऑब्लिक 0। अब जितनी बार आपको जीरोस प्रोड्यूस करना है, ए की जगह आप बार बार 0 A 0 A 0 A रखते जाइए, आपका बार बार जीरोस प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने लिखा है ए प्रोड्यूसेस 0 A, राइट? तो अगर मुझे फिर से ए की जगह 0 A रखना है तो 0 0 A हो जाएगा।
अगर फिर से मैंने ए की जगह 0 ए रखा तो 0 0 0 ए हो जाएगा। अब आपको चाहे एक बार चाहिए 0, 2 बार, 3 बार, 1000 बार, आप कितनी बार भी जीरोस इस प्रोडक्शन का यूज करके ला सकते हो। सबसे कम बार कितनी बार 0 आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ n एंड m आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो हमें एक बार तो 0 रखना पड़ेगा कम से कम। तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा है a प्रोड्यूसेस 0a ऑब्लिक 0। सो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्शन क्या है, a प्रोड्यूसेस 0। ठीक है, अब 0 के लिए तो काम हो गया, 1 के लिए क्या करें हम, तो 1 के लिए आप देखिए, मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं और उसको उससे मैं 1 प्रोड्यूस कर लेता हूं। तो सेम तरीके से मैंने b प्रोड्यूसेस 1b ऑब्लिक 1 करके जितने चाहे मैं 1 प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे दोनों को एक साथ मिला के रखना है, तो मैं एक स्टार्ट वेरिएबल बनाऊंगा और a के बाद b लिख दूंगा, क्योंकि a का मतलब है नंबर ऑफ जीरोस और b का मतलब है नंबर ऑफ वंस। तो जीरोस आर फॉलोड बाय वंस। इस तरीके से मैं इसकी ग्रामर बना सकता हूं। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लें 0 टू द पावर n 1 टू द पावर m की, आपकी इस ग्रामर से इजीली आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो फॉर दिस लैंग्वेज सेट। देन अनदर लैंग्वेज L4 विच इज 0 एस्ट्रिक्स प्लस 1 एस्ट्रिक्स। इसके लिए अगर हमें ग्रामर लिखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम समझेंगे कि ये लैंग्वेज कैसी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है। सो इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोस इंक्लूडिंग एप्सिलॉन एंड एनी नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। सो हियर आई हैव रिटन इट लाइक दिस कि यहाँ पर एप्सिलॉन के बाद एक बार 0, 2 बार 0 या एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन कम, और 1 भी इसी तरीके से हम कितने भी नंबर में वंस को भी हम रिपीट कर सकते हैं, बट कभी भी 0 के साथ 1 या 1 के साथ 0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए, इसकी ग्रामर बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच होगा। a produces 0a ऑब्लिक एप्सिलॉन लिखा, which will produce any number of zeros in our string. b will produce 1, so 1b ऑब्लिक एप्सिलॉन का यूज करके हमने क्या किया, कितने बार भी हमने b प्रोड्यूस किया अपने स्ट्रिंग लैंग्वेज सेट में। और अब मैंने क्या किया इन दोनों को रखने के लिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया s प्रोड्यूसेस a ऑब्लिक b ऑब्लिक एप्सिलॉन। दैट मींस या तो a होगा या तो b होगा, a और b कभी भी साथ में नहीं आएंगे। सो दिस ग्रामर कैन बी रिटन लाइक दिस।